तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो वीडियो मैं आपके लिए चलाने वाली हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को सिर्फ आपको देखना है, राइट? समझना नहीं है। समझने का काम मेरा है, समझाने का काम मेरा है, वो मैं आपको समझाऊंगी, राइट? तो आपको सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखना है और ऑब्जर्व करना है, विजुअलाइजेशन करना है, चीजों को देखना है कि क्या वो आपको दिखा रहे हैं, राइट? हिंदी के अंदर ये वीडियो जो है इंग्लिश के अंदर है, हिंदी में इस वीडियो को प्रॉपरली मैं समझाऊंगी, लेकिन सिर्फ अभी आपको इस वीडियो को देखना है, राइट? चलिए, तो मैं वीडियो जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। The Adam's apple. The two major hormones of the thyroid are triiodothyronine, T3, and thyroxine, T4. The numbers 3 and 4 indicate the number of iodine atoms present in a molecule of each hormone. T3 and T4 are collectively referred to as thyroid hormones. Thyroid hormone secretion is under control of thyroid stimulating hormone, TSH, from the anterior pituitary. TSH, in turn, is induced by thyrotropin-releasing hormone, TRH, produced by the hypothalamus. The amount of circulating thyroid hormones is regulated by a negative feedback loop. When their levels are too high, they suppress the production of TSH and TRH, consequently inhibiting their own production. Thyroid hormones act to increase the body's metabolic rate. They stimulate appetite, digestion, breakdown of nutrients, and absorption. They also increase oxygen consumption, raise the breathing rate, heart rate, and contraction strength. As a result, the body's heat production is increased. Thyroid hormone secretion usually to keep the body warm. There are two major groups of thyroid problems. Hypothyroidism, when the thyroid does not produce enough hormones, resulting in a low metabolic rate, combined with slow respiratory and cardiovascular activities. Common symptoms include fatigue, weight gain despite poor appetite, cold intolerance, slow heart rate, heavy menstrual bleeding, and constipation. Iodine deficiency and Hashimoto's thyroiditis are the most common causes. Hashimoto's thyroiditis is an autoimmune disease in which the thyroid gland is gradually destroyed by the body's own immune system. Hypothyroidism, especially when caused by iodine deficiency, may lead to swelling of the thyroid gland, known as goiter. In an attempt to fix the low levels of thyroid hormones, the pituitary produces more TSH to further stimulate the thyroid gland. The thyroid, while unable to make hormones without iodine, responds to TSH by growing in size. Hypothyroidism is managed with thyroxine hormone replacement. Hyperthyroidism, when the thyroid gland produces too much hormones, resulting in a too active metabolism, together with respiratory and cardiovascular rates that are higher than necessary. Common symptoms include irritability, insomnia, weight loss despite good appetite, heat intolerance, heart racing, and diarrhea. Hyperthyroid, another body, TSI, similar to TSH, stimulates the thyroid gland to produce hormones. Unlike TSH, however, TSI is not regulated by negative feedback mechanisms, leading to uncontrolled production of thyroid hormones. TSI also stimulates the thyroid gland to grow, which may lead to formation of a goiter. Hyperthyroidism may be managed with drugs that suppress thyroid. Very nice. Okay, let's start it again. Am I audible? सब लोगों ने वीडियो देख लिया है? आप लोग चैट बॉक्स में मेरे साथ कनेक्टेड रहिए. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है चैट रूम के अंदर मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और बताते रहिए कि क्या चीजें हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको नहीं आ रहा है. यस मैम. ओके, तो चलिए अब हम जानते हैं कि व्हाट इज थायराइड, है ना? थायराइड के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी है. मैम मेरी वाइफ को थायराइड है, मैम मेरी जो है बेटी को थायराइड है,
अभी पीछे मेरे पास एक फोन आया, मैम मेरी 5 साल की बच्ची को थायराइड हो गया है। तो थायराइड जो है औरतों में ज्यादातर होता है, लेकिन क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या कारण है, क्या चीजें हैं जिसकी वजह से थायराइड हो जाता है, ये हम में से कोई नहीं जानता, हम में से कोई भी नहीं समझता, या शायद हम समझना चाहते नहीं है, राइट। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट इज थायराइड। थायराइड तो कोई बीमारी नहीं है। थायराइड सिर्फ और सिर्फ एक ग्लैंड का नाम है, और ये ग्लैंड जो है, ये यहाँ पर आपको ये जो पिंक कलर का ग्लैंड दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड, राइट। थायराइड ग्लैंड है ये। बीमारी उसको आपने और मैंने बनाया है, राइट। वो एक ग्लैंड था जो बॉडी के बहुत सारे काम कर रहा था, बहुत सारी चीजें कर रहा था। उससे बीमारी किसने बनाया, आपने और मैंने बनाया, अपनी बहुत सारी चीजों को गलत करके, अपनी लाइफस्टाइल को खराब करके, अपनी बहुत सारी चीजों को खराब करके। अब थायराइड हो गया, राइट। ये जो ग्लैंड है ये है थायराइड ग्लैंड। अब आपको सबको समझ में आ जाएगा कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, ये थायराइड ग्लैंड है, राइट। अब ये थायराइड ग्लैंड जो है, आप इसको लगा सकते हो, आप इसे बोल सकते हो कि आपके घर की जो है सासू माँ है। ग्लैंड का मतलब क्या होता है मैम, सर ग्लैंड वो चीज होती है जो कि आपके बॉडी के अंदर हार्मोन को रिलीज करती है, राइट। आपकी बॉडी में हार्मोन को रिलीज करने में आपकी मदद करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स को रिलीज करने में हमारी मदद करता है। कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, ये थायराइड ग्लैंड से दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है T3 और एक होता है T4, राइट। T3 हार्मोन एंड T4 हार्मोन। जब भी आपको थायराइड होता है, जिन लोगों को थायराइड है, जो थायराइड का टेस्ट करवाते हैं, उनको ज्यादातर 3 चीजों का टेस्ट करवाने के लिए बोला जाता है। आपको भी अगर थायराइड है या आप थायराइड का टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो आप 3 चीजों का टेस्ट जरूर करवाना आपको पड़ेगा। एक है T3, एक है T4 और एक होता है TSH। आप ये सारी चीजों को लिख सकते हैं, राइट। अगर आपको बहुत थकावट होती है, अगर आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, अचानक से आपको गुस्सा आ जाता है, अचानक से आपको बहुत रोने का मन करता है, अचानक से आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी हो रही है, आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड्स जो है वो डिले होने लगे हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशन, आपकी सांस फूलती है बहुत ज्यादा, आपको खाना जो है, कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर अगर आपको रहता है, आपको वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरा खाना भी वही है नॉर्मल जो चलता है, तो अब क्या हो रहा है, आपको हो सकता है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो और आपको अपना थायराइड टेस्ट करवा लेना चाहिए, राइट। अब ये थायराइड टेस्ट जो है वो कैसे आता है, आपको 3 चीजों का टेस्ट करवाना पड़ेगा, T3, T4 एंड TSH। ये T3 और T4 हार्मोन कौन रिलीज करता है, आपका थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, राइट। T3 का मतलब क्या है कि 3 आयोडीन इसके अंदर है, और T4 का मतलब क्या है कि 4 आयोडीन इसके अंदर है। तीसरे हार्मोन की अगर मैं बात करूं, तीसरे हार्मोन का क्या काम है, तीसरा हार्मोन कहां से आता है, तो तीसरा हार्मोन जिसको हम बोलते हैं TSH, ध्यान से सिर्फ और सिर्फ सुनना है, समझने की कोशिश करनी है, राइट। क्वेरी, क्वेश्चंस या कौन सी चीजें, कौन सी बातें हैं, आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब हम लोग धीरे धीरे आगे आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनिए। TSH क्या होता है, TSH एक हार्मोन है जो कि आपके ब्रेन में, आपका दिमाग के अंदर रिलीज होता है, राइट। TSH जब रिलीज होगा तो वो आपके थायराइड हार्मोन को बोलेगा कि तू T3 और T4 रिलीज कर। इसका मतलब TSH जो है आपके थायराइड ग्लैंड को इंडिकेशन देता है कि उसको T3 और T4 रिलीज करना है। अब मैक्सिमम जो लोग हैं जिनको थायराइड है, अगर आपके घर में किसी को थायराइड है, अगर आपको किसी को थायराइड है, अगर आपकी बेटी को है, आपकी भाभी को है, आपको है, तो आपको एक चीज सुनने में मिलेगी। आप किसी भी थायराइड के पेशेंट से कभी भी बात कीजिएगा तो आपको एक चीज हमेशा सुनने को मिलेगी कि थायराइड उनको ज्यादातर कब होता है, जब उनको क्या होता है,
स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी जब वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत ज्यादा तनाव में थे, और उस वक्त जब उनको धीरे धीरे थायराइड हो गया और उन्होंने थायराइड का टेस्ट करवाया, तो डॉक्टर ने उनको बताया कि मुझे आपको जो है क्या है, थायराइड की प्रॉब्लम है। काफी लोगों को, अगर आप 10 लोगों को जानते हैं तो 10 लोगों को अलग अलग आप उनसे बात कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, आपको मिलेगा कि 7 से 8 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिनको दायक है। और अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल्स, अगर आप अपने तनाव को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप अपने थायराइड को, अपने डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? बहुत सारे लोग बोलते हैं, एम आई ऑडिबल रिजुता? Yes, ma'am. Now it's clear and very clear. ओके, परफेक्ट, इट्स क्लियर, राइट? Yes. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम अभी मैंने मैम बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हुआ है, हेलो 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 हेलो। मैम आवाज ब्रेक होके आ रही है आपकी, पूरी क्लियर नहीं आ रही है। What should I do for this? Now better, now better, now better. Okay, am I audible? Now yes मैम, अभी क्लियर है आप। Okay, 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 perfect, okay, okay, perfect, very nice. Please repeat. Okay, perfect, I will repeat. तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैम TSH का कॉन्सेप्ट जो है हमें समझ में नहीं आया। TSH आपके ब्रेन में होता है, आपके ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, राइट? जैसे आपका थायराइड ग्लैंड है वैसे ही आपका जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। थायराइड का काम है T3 T4 रिलीज करना, और पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है TSH रिलीज करना, राइट? तो जब आपकी बॉडी में TSH रिलीज होगा तो TSH आपके थायराइड ग्लैंड को बताएगा कि उसे कितना T3 और T4 रिलीज करना है। देखिए, आपके बॉडी में, आपके शरीर में हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। हर एक चीज जो है वो इंटरलिंक्ड है। एक चीज को अच्छा करके दूसरी चीज को आप खराब नहीं कर सकते, एक चीज को खराब करके दूसरी चीज को आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, राइट? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपको स्ट्रेस होता है, आपको तनाव होता है, आपको ब्रेन के अंदर आपकी कोई चीज है जो 24 घंटे चलती जा रही है, आपको स्ट्रेस है, आपको बहुत ज्यादा तनाव है, ज्यादातर आप देखेंगे कि लोगों को उस टाइम पर थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। थायराइड जो है वो आ जाता है, थायराइड डायग्नोस हो जाता है। अब बहुत सारे लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि मैम मैं इतने सालों से जो है मेडिसिन ले रहा हूँ या मैं आपके वेस्टीज के सप्लीमेंट ले रहा हूँ, पर मेरा थायराइड जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। या एक सवाल जो कॉमनली सुनने में आता है वो आता है कि मैम मैंने पिछले 6 महीने से वेस्टीज के पूरे सप्लीमेंट्स को कंज्यूम किया, सारी चीजों को मैंने कंज्यूम किया, लेकिन 1 महीने पहले जब मैंने अपना थायराइड का टेस्ट करवाया तो मेरा थायराइड क्या हुआ, बढ़ा। नहीं है कि थायराइड का डायरेक्ट कोरिलेशन आपके स्ट्रेस से है, आपके तनाव से है। जब आपको स्ट्रेस होता है, जब आपको तनाव होता है, तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, राइट? आप लोग लिख सकते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन, CORTISOL, राइट?
तो जब आपकी बॉडी में आपको तनाव होगा, जिस वक्त भी आपको लगे कि आप स्ट्रेस में हैं, आप तनाव में हैं, राइट, आपको कोई ना कोई चीज की प्रॉब्लम है, तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज हो जाता है, वो होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। और जैसे ही ये कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा, आपके शरीर में ये हार्मोन आएगा, तो वो आपके टीएसएच को या तो ज्यादा बनाएगा या तो कम बनाएगा। जब आपका टीएसएच ज्यादा या कम बनेगा तो क्या होगा, आपका T3 T4 भी या तो ज्यादा बनेगा या तो कम बनेगा, जिसकी वजह से थायराइड की समस्या हमारे लिए बढ़ती चली जाती है, प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो एक चीज हमें सबसे पहले समझनी है, आपके स्ट्रेस लेवल्स को आपको कंट्रोल करना है, आपके स्ट्रेस लेवल्स को आपको नॉर्मल रखना है, अच्छा रखना है। अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका थायराइड जो है वो ऊपर नीचे आगे पीछे, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ये सब चलता रहेगा, राइट। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए थायराइड के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप स्ट्रेस लेवल्स को क्या करें, कंट्रोल करें। यस, वेरी नाइस। एक सर ने लिखा है कि नो स्ट्रेस नो थायराइड, एग्जैक्टली राइट, वेरी वेरी ट्रू। आप स्ट्रेस को कम करके थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप सबसे पहली चीज, आप अपनी बॉडी में स्ट्रेस को ही कंट्रोल नहीं करेंगे, तनाव को ही कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी हमेशा तनाव में रहेगी, और अगर वो तनाव में रहेगी तो आपको प्रॉब्लम होती रहेगी, राइट। तो चलिए जानते हैं कि कितने तरीके के थायराइड होते हैं और थायराइड का हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट क्या होता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये सबसे पहले जो काम करता है, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो खाने को पचाने की क्षमता होती है, उसे अच्छा करने में हमारी मदद करता है। इसलिए जितने भी थायराइड के पेशेंट्स हैं, जो थायराइड जिनको है, उनके अंदर ज्यादातर एक प्रॉब्लम आती है, वो होती है एसिडिटी का बनना, पेट का हमेशा खराब रहना, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक जो समस्या है, वो आम समस्या है जो कि थायराइड में देखी जाती है, स्पेशली हाइपोथायराइड में, जिसमें आपका वजन बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, राइट। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको आने लगती है। अब जब क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, तो धीरे धीरे आपको पाइल्स की समस्या भी हो सकता है कि आपको पाइल्स की समस्या सीवियर होने लग जाए, या फिर आपको पेट की बीमारियां बहुत ज्यादा होने लग जाएं, या फिर धीरे धीरे आपको बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ सकती हैं, राइट। तो क्या हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है। एक सर पूछ रहे, कैन इट अफेक्ट मेटाबॉलिक रेट? यस, इट अफेक्ट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ योर बॉडी। ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, बहुत बुरे तरीके से खराब करता है। साथ ही साथ हार्ट रेट, हमारे जो हार्ट रेट है, वो या तो कम चलने लगती है या तो बहुत तेज चलने लगती है। तो जिनको पैल्पिटेशन होता है, जो हाइपरथायराइड के पेशेंट होते हैं, जिनका वजन कम होने लगता है, जो वेट लॉस के पेशेंट होते हैं, जिनको थायराइड की वजह से वेट लॉस होने लगता है, उनमें आप ज्यादातर सुनेंगे कि वो क्या बोलेंगे कि हमारा हार्ट बहुत तेज धड़कता है, पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा होती है। और जो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं, वो हमेशा क्या बोलते हैं कि हमें हमारा हार्ट रेट जो है वो कम है, हमारी हार्ट रेट जो है वो कम हो जाती है, राइट। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारा जो है थायराइड कितने तरीके का होता है। सबसे पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म, राइट। हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर आज हम बात करेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। हाइपोथायरॉयडिज्म के जितने भी पेशेंट्स हैं, जो भी लोग हैं, जो जिनको थायराइड है, हाइपोथायराइड है, सबसे पहले उनका क्या होगा, वेट गेन। आपको बहुत ज्यादा थकावट होती है, थोड़ा सा काम करते हैं आपको सोने का मन करता है, आपको नींद बहुत ज्यादा आती है, आपको थकावट बहुत ज्यादा होती है। थर्ड जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कोल्ड इंटॉलरेंस, मतलब आपको जो है
ठंडी चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, ठंड के मौसम में आपको प्रॉब्लम होती है, आपको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, राइट, आप कोल्ड मतलब ठंडे वेदर को आप टॉलरेट नहीं कर पाते। स्लो हार्ट रेट, आपका जो हार्ट रेट है वो कम होने लगता है, स्लो होने लगता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, आपके पीरियड्स जो है या तो वो बंद हो जाएंगे, या तो वो कम हो जाएंगे, या तो वो ज्यादा हो जाएंगे, या तो वो इररेगुलर हो जाएंगे। और आखिरी में आता है कॉन्स्टिपेशन, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हाइपोथायराइड के अंदर स्पेशली होती हैं। दूसरी चीज जो थायराइड के पेशेंट को ध्यान रखना है, थायराइड तो आपको हो गया, मुझे मान लीजिए आज थायराइड हो गया है, लेकिन थायराइड के बाद जो दो समस्याएं सबसे पहले आपको अटैक करती हैं वो कौन सी है? थायराइड के पेशेंट को सबसे ज्यादा डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि थायराइड के साथ आनी शुरू हो जाती है, राइट। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने डायबिटीज पर कंट्रोल रखें। दूसरी बीमारी जो कि थायराइड के पेशेंट को आम तौर पर ले लेती है वो है कोलेस्ट्रॉल, राइट। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हमेशा बढ़ी ही रहेगी, कोलेस्ट्रॉल हमेशा ऊपर नीचे ही रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमेशा खराब ही रहेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल एक आम प्रॉब्लम है जो कि थायराइड के पेशेंट में देखी जाती है। और तीसरी प्रॉब्लम जो कि थायराइड पेशेंट में ज्यादातर देखी जाती है वो होती है ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियों की दिक्कत, राइट। हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों में पेन होना, हड्डियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाना, ये तीन प्रॉब्लम। आज आपको थायराइड हो गया, आप थायराइड से जूझ रहे हैं, थायराइड से लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये तीन प्रॉब्लम से भी आपको लड़ना पड़ेगा अगर आपने अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो कौन कौन सी तीन प्रॉब्लम है? डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल एंड योर ऑस्टियोपोरोसिस, राइट। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें करनी चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर मेडिकेशन, राइट। बहुत सारे लोग जो ये बोलते हैं कि मैम मुझे हाइपोथायराइड है लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, मैं जो है किसी भी तरीके की मेडिसिन शुरू नहीं करना चाहता, तो आप जो है अपनी लाइफ के साथ बहुत गंदे तरीके से खेल रहे हैं। आपको डॉक्टर का रिकमेंडेशन लेना चाहिए, चाहे आप दवाई लेना चाहते हैं, चाहे आप दवाई नहीं लेना चाहते हैं, पर फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाकर अपनी टेस्ट रिपोर्ट दिखानी चाहिए और साथ ही साथ आपको उनका कंसल्टेशन प्रॉपरली लेना चाहिए। अगर आप दवाई नहीं लेना चाहते हैं या आप दवाई लेना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे और ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। दूसरी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो है प्रॉपर लाइफस्टाइल, एक अच्छा लाइफस्टाइल। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, आप अपने थायराइड को रिवर्स कर सकते हैं, आप अपने कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स कर सकते हैं। So one thing is which is very very necessary is your lifestyle and your food. आपका जो खाना है वो प्रॉपर होना चाहिए, राइट। Am I audible, रिजुता? यस मैम, यस। ओके, तो आपका सर के नेटवर्क में इशू आ रहा होगा, आप ऑडिबल हैं। हाँ, ओके परफेक्ट। तो जो थायराइड है, देखिए एक चीज आपको जरूर समझनी पड़ेगी, जो भी लोग यहाँ पर है उनको एक चीज समझनी पड़ेगी। आपको थायराइड हो गया और आप सुबह सुबह उठकर बस अपने शरीर में एक पिल डाल लेते हैं, एक गोली डाल लेते हैं, वो किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, राइट। हो सकता है कि वो गोली जब आप खाते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर आपको जो अगली बार अगले महीने जब आप थायराइड का टेस्ट करवाएंगे तो वो नॉर्मल दिखाने में आपकी मदद करे, जो कि हमें कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि अरे मेरे को थायराइड लेवल हाई थे, मैंने ये गोली खानी शुरू की और मेरे थायराइड लेवल्स कम आने शुरू हो गए। लेकिन एक गोली डाल लेना सिर्फ और सिर्फ किसी भी बीमारी का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करना है, सबसे पहले आपको क्या चीजें करनी है? 40 मिनट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, make it your routine, make it your habit. Those who have thyroid, it is very very important for you. आप जिंदगी में किसी भी चीज को
आप जो है किसी भी चीज से थायराइड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी 40 मिनट की एक्सरसाइज आपको अच्छे थायराइड लेवल्स देने में आपकी मदद करेगी, आपके डायबिटीज को कंट्रोल करेगी, आपके कोलेस्ट्रॉल को अच्छा रखेगी, आपकी हड्डियों को अच्छा रखेगी, आपके मूड को अच्छा करने में आपकी मदद करेगी, आपके स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज करें, राइट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको लिखना है, ये आपकी ट्रीटमेंट है, ये आपकी दवाई है, राइट। सेकंड, योग निंद्रा, राइट। योग निंद्रा, अगर आप YouTube के ऊपर जाएंगे, योग निद्रा की बहुत सारी जो है आपकी वीडियोस हैं, आपकी 30 मिनट की, 40 मिनट की ऐसी वीडियोस हैं जो कि योग निद्रा करने में आपकी मदद करती हैं। उन वीडियोस के द्वारा आप अपने घरों में, इस वक्त हम लॉकडाउन में हैं, बहुत चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, अपने थायराइड लेवल्स को वापस से नॉर्मल लेकर आ सकते हैं, राइट, अच्छा कर सकते हैं। तो योग निद्रा जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, तो आप हर हफ्ते, आप जो है हर दूसरे दिन, तीसरे दिन योग निद्रा जो है आप उसको कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको योग निद्रा की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तीसरी चीज जो कि आपको सीखनी है, आपको करनी है, वो है सूर्य नमस्कार, राइट। सूर्य नमस्कार आपके थायराइड लेवल्स को अच्छा करने के साथ साथ आपके वेट लॉस को भी करने में आपकी मदद करेगा, वजन को भी कम करने में आपकी मदद करेगा। आराम से कोई भी YouTube पे जाइए, सूर्य नमस्कार की वीडियो चलाइए। अभी बहुत टाइम है लॉकडाउन के अंदर, 10 दिन ऑलमोस्ट पड़े हुए हैं, हम आराम से सीख सकते हैं, राइट। सूर्य नमस्कार। चौथा आसन जो आपको करना है, चौथी चीज जो आपको करनी है थायराइड के अंदर, वो एक आसन होता है, मुझे उस आसन का नाम तो नहीं पता, बट आप जो है जब आप आराम से बैठते हैं तो आप इस तरीके की हमिंग वॉइस निकालते हैं, जैसे आप बैठे हुए हैं और आप अपने मुंह से आवाज निकालते हैं, राइट। इस तरीके की जब हम ब्रह्मरी आसन, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ब्रह्मरी आसन, वेरी नाइस, राइट। तो ब्रह्मरी आसन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ थिंग जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, ये आपको जरूर करना है क्योंकि आपके थायराइड को एक्टिवेट करने में मदद करेगा, राइट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप भ्रमरी आसन को करें क्योंकि आपके आपकी जो थायराइड है उसे इंक्रीज करेगा, उसे एक्टिवेट करने में आपकी मदद करेगा, राइट। नेक्स्ट, कौन कौन सा भोजन, कौन कौन सा ऐसा खाना है जो कि हमें थायराइड में अवॉइड करना है। सबसे पहले, अवॉइड का मतलब ऐसा नहीं है कि 100% बंद करना है, लेकिन हमें कम खाना है, हमें उसे क्या करना है, अवॉइड करना है। पीनट, मूंगफली, राइट, आप लोग लिख सकते हैं पीनट, मूंगफली। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जो है लिखकर बता दूं। ओके, परफेक्ट। कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमें अवॉइड करनी है। अवॉइड फूड्स, आपको सबको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जाएगा। पीनट्स, पीनट्स जो होते हैं आपको उन्हें अवॉइड करना चाहिए, आपको उनको अवॉइड रखना चाहिए, कम मात्रा में खाना चाहिए। गोइट्रोजन फूड्स, राइट, गोइट्रोजन फूड्स। गोइट्रोजन फूड्स क्या होते हैं, अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे। तो कैबेज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, राइट, ब्रोकली। मैं इतनी ज्यादा अभी जो है स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। कैबेज, ब्रोकली या फिर कैले, राइट, ये जो है बहुत सारे लोग हैं जो आजकल अपने वजन को कम करने के लिए इन चीजों का यूज करते हैं। ब्रोकली, बहुत सारे लोग हैं जिनको थायराइड है वो ब्रोकली खाते हैं क्योंकि उनको अपना वजन कम करना है। तो अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, अगर आप कच्ची खा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। तो जो पत्ता गोभी है, जो फूल गोभी है, ब्रोकली है, अगर आपको कभी खाना भी है, आपका मन भी कर रहा है, तो आपको अच्छे से पकाकर खाना है। प्रॉपरली आपको क्या करना है, अगर खाना भी है तो आपको उसको प्रॉपरली कुक करना है, प्रॉपरली अच्छे से उसको आपको पकाकर खाना है। नेक्स्ट थिंग जो आपको अवॉइड करनी है दैट इज सोया फूड्स।
सोया फूड्स के अंदर क्या आता है, सोयाबीन, सोया की जो बड़ियां होती हैं, सोया की जो चीजें होती हैं, उनको हमें ज्यादा नहीं खाना है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बिल्कुल बंद करना है, बट आई एम सेइंग कि आपको ज्यादा नहीं खाना है। कई लोग जो है वो हफ्ते में 2 बार 3 बार उसको खा रहे हैं, ऐसी चीजों को खा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं खाना है, राइट। एक चीज जो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है, सोया ऑयल, राइट। सोया जो ऑयल है, आप अगर ज्यादातर जितने भी प्रोसेस्ड भोजन देखेंगे, जो बाहर का खाना आता है, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उसके अंदर सोया ऑयल का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब आपको प्रोसेस्ड भोजन, बाहर का खाना नहीं खाना है, राइट। जितने भी आपके रेस्टोरेंट्स हैं, उनके अंदर सोया ऑयल का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, तो वहां पर भी हमको उसके यूसेज को कम करना है, राइट। नेक्स्ट इज रिफाइंड शुगर, रिफाइंड शुगर, राइट। चीनी का कंजम्पशन आपको मिनिमम रखना है, आपको कम से कम करना है। कोशिश कीजिए कि जो व्हाइट शुगर है, व्हाइट शुगर इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, व्हाइट शुगर इज नॉट समथिंग विच वी शुड ईट, राइट। ज्यादा मात्रा में जो व्हाइट शुगर आजकल हम लोग खा रहे हैं, मैं लॉकडाउन में बहुत लोगों को देख रही हूँ कि वो अलग अलग चीजें बनाते हैं, अलग अलग हलवा बन रहा है, कभी खीर बन रही है, कभी ये बन रहा है, कभी वो बन रहा है। पर ये मत भूल जाइएगा कि आप जब लॉकडाउन से बाहर आए तो आपको पता चले कि आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपके जो ग्लैंड्स हैं, वो खराब हो गए हैं, आपके सेल्स जो हैं वो वीक हो गए हैं। तो क्या होता है, व्हाइट शुगर का कंजम्पशन आपको कम करना है। इंस्टेंट ऑफ दैट कैन वी यूज जैगरी? यस, इट इज अ गुड ऑप्शन टू यूज जैगरी। अगर आपको चीनी खाने का मन है, अगर आपको लगता है कि आपको जो है दूध में चीनी चाहिए ही चाहिए, चाय में चीनी चाहिए ही चाहिए, और अगर आपको डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, राइट, तो आप जो है गुड़ का यूज कर सकते हैं, जैगरी का यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है स्वीटनर में स्टीविया का भी यूज कर सकते हैं, राइट। कुछ लोग पूछ रहे हैं मैम ब्राउन शुगर, मैम शक्कर, नो, नेवर, राइट। ब्राउन शुगर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ शुगर, शक्कर इज ऑल्सो, शक्कर जो है वो गुड़ से ही बनती है, तो आप ले सकते हैं, राइट, लेकिन ज्यादा मात्रा में इनका भी यूज आपको नहीं करना है। और जब मैं आपको बोलती हूँ रिफाइंड शुगर को आपको बंद करना है, इसका मतलब आपको चॉकलेट भी बंद करनी है, इसका मतलब आपको केक और पेस्ट्री भी बंद करनी है, इसका मतलब आपको ऐसी कोई भी चीज यूज नहीं करनी है जिसमें बहुत ज्यादा शुगर है। शुगर आपके थायराइड ग्लैंड को खराब करेगी। शुगर अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं, आपको चीनी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप अपने थायराइड लेवल्स को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, आप जिंदगी में भी अपना थायराइड प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने खाने में इंक्लूड करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें लेनी चाहिए, राइट। तो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो होते हैं वो मीडियम चेन फैटी एसिड होते हैं, मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं। तो क्या करेंगे, थायराइड पेशेंट्स के वेट लॉस में मदद करेंगे, वेट लॉस करने में मदद करेगा। थायराइड में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है स्किन की, मैम मेरी स्किन खराब हो गई, राइट, मैम मेरी जो है स्किन वो जो है थायराइड की वजह से बहुत ड्राई होने लग गई है, मैम मेरी स्किन पे काले काले दाग आने लगे हैं। स्पेशली जो आप देखेंगे अपर लिप्स का जो एरिया होता है, लिप्स के आसपास का जो एरिया होता है, वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो वहां पर आप जो है यूज कर सकते हैं कोकोनट ऑयल, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट इज मैम मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं, थायराइड के पेशेंट्स के बाल हमेशा ड्राई रहते हैं, मैडम मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कोई ऑयल यूज करना या सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा शैम्पू यूज करना इसका ऑप्शन नहीं है, आपको अंदर से अपने थायराइड के ग्लैंड को अच्छा करना पड़ेगा। थायराइड ग्लैंड जब नॉर्मल काम करना शुरू करेगा तो आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी त्वचा सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाती है, राइट। तो क्या करना है, कोकोनट ऑयल का आपको जरूर यूज करना है। अगर आप साउथ इंडियन हैं, आप अपने खाने में कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, गुड इनफ। अगर
आप नहीं यूज करते हैं तो कोकोनट ऑयल कैप्सूल्स आपके लिए एक बहुत पावरफुल सप्लीमेंट हो सकता है। वेट लॉस करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है। तो एक चीज जो हमें लेनी है वो कौन सी लेनी है? कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हैज मिराकुलस रिजल्ट्स, not just only in thyroid, it has good results in diabetes, it has miraculous results in cholesterol, it has good results in cancer, it has good results in other metabolic disorders. So coconut oil has some very good results in all the diseases, in all the problems, बहुत अच्छे results देता है। So you should always include coconut oil in your diet. Next thing which you should include when you are fighting with thyroid is omega-3 fatty acids, right? omega-3 fatty acids, उसके लिए अगर आप फिश का यूज कर सकते हैं, वेरी वेल। अगर आप मछली खाते हैं, अगर आप फिश का यूज कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप फ्लेक्स का यूज कर सकते हैं, फ्लेक्स अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या आप क्रिल का भी यूज कर सकते हैं। Both the supplement flax oil and krill oil plays a very very important role in regulating your thyroid. थायराइड को रेगुलेट करने में आपकी बहुत मदद करता है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करता है। एक सर ने क्वेरी की है, मैम राइस ब्रान ऑयल ले सकते हैं? सर राइस ब्रान ऑयल से आप खाना बनाते हैं, राइस ब्रान ऑयल को आप सप्लीमेंट की तरह नहीं लेंगे, राइस ब्रान ऑयल को आप पी नहीं सकते, वो काम कोकोनट ऑयल का है, राइट? कोकोनट ऑयल सप्लीमेंटेशन की मैं बात कर रही हूँ, राइस ब्रान ऑयल में हम खाना बनाते हैं, राइट? नाउ लेट्स कम टू फ्लेक्स ऑयल एंड क्रिल ऑयल। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैम मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे ओमेगा 3 कहाँ से मिलेगा? फ्लेक्स ऑयल से मिलेगा, आप फ्लेक्स ऑयल ले सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मैं जो है ले सकता हूँ, तो आप क्रिल ऑयल ले सकते हैं। मैम क्या इनको दोनों को साथ में ले सकता हूँ? यस, आप दोनों को साथ में ले सकते हैं। मैम मुझे फ्लेक्स जो है गर्मियों में गर्म होता है, गर्मी करता है, तो आप क्रिल ऑयल ले सकते हैं। जिनको फ्लेक्स ऑयल सूट नहीं करता, जिनको फ्लेक्स ऑयल से गर्मी बनती है, उनके लिए ओमेगा 3 का ऑप्शन है क्रिल ऑयल, राइट? तो वो क्रिल ऑयल ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट सप्लीमेंट जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट पोषण जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमें लेना चाहिए, दैट इज विटामिन ए, राइट? विटामिन ए, विटामिन ए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब थायराइड होगा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। देखिए आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो चैट बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं, मैम सी बकथॉर्न भी, मैम ये भी, मैम वो भी। सर मुझे मीटिंग खत्म करने दीजिए, मुझे मीटिंग को समझाने दीजिए, उसके बाद आप अपनी क्वेरी पूछेगा, राइट? तो विटामिन ए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन, जो कि थायराइड में खत्म होने लगता है, खराब होने लगता है। हमारा कौन सा सप्लीमेंट है जिसके अंदर विटामिन ए आपको अच्छी मात्रा में मिलता है? दैट इज कॉम्बायोटिक्स, राइट? कॉम्बायोटिक्स के अंदर विटामिन ए 100% पूरा होता है, रोजमर्रा के जीवन में 100% आपको पूरा करने में आपकी मदद करता है, सॉरी 100% देता है, मतलब रोज की रिक्वायरमेंट का 100% पूरा करता है। नेक्स्ट सप्लीमेंट जो हमें चाहिए, नेक्स्ट पोर्शन जो हमें चाहिए, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी हमें किससे मिलता है? कॉम्बायोटिक्स, राइट? ये भी आपको कॉम्बायोटिक्स से मिल जाता है। 50% जो है विटामिन डी की कमी को पूरा करने में आपकी मदद करता है। रोजमर्रा के जीवन के 50% जो विटामिन डी है, हम कॉम्बायोटिक्स की एक गोली अगर खाते हैं तो उससे मिलने में हमें मदद मिलती है। विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12 भी एक बहुत जरूरी पोर्शन है, जो कि हमें थायराइड के अंदर पूरा करना है। हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, और अगर ये कमी रहेगी तो हमारे लिए थायराइड ग्लैंड का नॉर्मल फंक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट? विटामिन B12 कौन पूरा कर रहा है? कॉम्बायोटिक्स पूरा कर रहा है। वेरी नाइस। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि काफी हद तक हमारी कमियों को पूरा कर रहा है। एक कॉम्बायोटिक्स अगर ले लिया तो काफी सारी चीजें पूरी कर देगा। 100% आपकी जो है विटामिन B12 के रिक्वायरमेंट को पूरा करने में आपकी
मदद करता है। नेक्स्ट जो पोषण हमें चाहिए दैट इज सिलेनियम, राइट। सिलेनियम, सिलेनियम जो है थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो सिलेनियम हमें जरूर चाहिए। सिलेनियम हमारे पास कौन से प्रोडक्ट से आएगा, अगेन कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स ये भी कमी को आपकी पूरी करने में आपकी मदद करता है, कॉम्बायोटिक्स ये काम भी कर रहा है, राइट। नेक्स्ट चीज जो कि कॉम्बायोटिक्स हमारे लिए करता है वो हमें देता है बहुत अच्छी मात्रा के अंदर विटामिन ई, मैग्नीशियम और बहुत सारा अलग पोषण, राइट। तो काफी हद तक आपकी जो है थायराइड में जो डिजीज होते हैं, जो कमी होती है, उसको पूरा करने में आपकी मदद करता है। दूसरा, जब हमें थायराइड होगा तो एक चीज हमेशा याद रखिए, आपको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन होगा, आपका पेट खराब रहेगा, आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा बनेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहेगा, आपका गट इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए अच्छी अमाउंट में प्रीबायोटिक, जी 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 मैम, लास्ट का पॉइंट जो सेलेनियम के बाद था वो आप रिपीट कर दीजिएगा, उससे पहले तक सारा चीज क्लियर था। ओके परफेक्ट। तो अभी कौन सी चीज है सिलेनियम के बाद का जो है, रिजुता ने बोला कि आप जो है क्लियर कर दीजिए। ओह शिट, सिलेनियम के बाद की चलिए बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें हैं जो सिलेनियम के बाद हमें लेनी है। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स आप लोग लिख सकते हैं, मैं लिखने की कोशिश कर रही हूं। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, राइट। प्रीबायोटिक्स ये भी हमें किससे मिलता है, कॉम्बोटिक्स से। हमारे पास प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स आता है। साथ ही साथ आप जो है कर्ड ले सकते हैं, कर्ड से हमें जो है बहुत अच्छी मात्रा के अंदर प्रोबायोटिक्स मिलता है। और दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे घरों में चावल बनता है, सबके घरों में चावल बनता है, राइट। राइट इन द चैट बॉक्स, लेट्स कम्युनिकेट, राइट इन द चैट बॉक्स। सबके घरों में चावल बनता है, वेरी नाइस। बहुत सारे लोग जो है बिहार में, यूपी में स्पेशली जो है चावल बनाया जाता है, लेकिन चावल कुकर में नहीं बनाया जाता, चावल को जो है एक बर्तन में डाला जाता है, उसमें बहुत सारा पानी डालते हैं, चावल जब पक जाता है तो उसमें से पानी को फेंक दिया जाता है, राइट। जिसको हम बोलते हैं कि चावल का स्टार्च निकाल दिया, बॉइल्ड राइस, मांड निकाल दिया, चावल का स्टार्च निकाल दिया, बॉइल्ड राइस जिसको हम बोलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, रात को चावल अगर बच गया है, राइट, तो आपने क्या किया, 2 चम्मच चावल आपने एक कटोरी के अंदर डाल के अलग से रख लिया। क्या करना है, चावल मैंने आज रात को बनाया है, चावल बच गया है, 2 चम्मच चावल मैंने कटोरी में निकाला और उसको रख लिया। अब इस चावल के अंदर मैंने पानी डाला और उसको रात को पूरी रात ढक कर रख दिया, राइट। क्या किया मैंने, राइट। full diet plan please, sir, we are not providing the diet plans over here, right. You can consult a dietitian for the diet plan. First we are giving you the only the diet tips over here, right. So आपको क्या करना है, आपको राइस को ढककर रखना है, एक कटोरी के अंदर आपको राइस रखना है, राइस को आपको ढक देना है, पानी डालना है उसमें थोड़ा सा, और सुबह सुबह जब आप उठते हो तो आपको वो चावल
खा लेने हैं, राइट। चावल को आप खा सकते हो। बॉइल्ड राइस, पकाया है मैंने चावल, राइट। राइस जो है वो रॉ नहीं होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए, बॉइल्ड राइस होना चाहिए, पका हुआ चावल होना चाहिए जो बच गया है रात को। उड़ीसा में अगर आप जाएंगे तो लोग बहुत खाते हैं जिसको हम पोखाल बोलते हैं, राइट। पोखाल बोला जाता है। रात को जो चावल बच जाता है उसको पानी में डालकर रख दिया जाता है और सुबह उस पानी के अंदर नमक मिर्च डालकर उसे खा लिया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। इट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर गट बैक्टीरिया। आपके बैक्टीरिया को, आपके पेट को अच्छा करने में आपकी मदद करता है, राइट। नेक्स्ट चीज जो हमारे लिए, नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, दैट इज कोलेजन। कोलेजन, कैल्शियम, राइट। कोलेजन और कैल्शियम मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि थायराइड पेशेंट को जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो कौन सी आती है, कि उनकी हड्डियों में से कैल्शियम निकलने लगता है, उनकी हड्डियों में कैल्शियम खराब हो जाता है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको अगर थायराइड है तो आपको रोज ही कोलेजन और कैल्शियम लेना है, बट जरूरी है कि आप इस सप्लीमेंट को भी इंक्लूड करें। हो सके तो आप साल में कम से कम 3 महीने के लिए ये दोनों सप्लीमेंट जरूर ले लीजिए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा खाना ही खाना है, रेगुलरली इसको लेते रहना है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपको थायराइड है, अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आपको ये सप्लीमेंट अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए, राइट। आपको अपनी डाइट में जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट का कंजम्पशन आपको जरूर करना है। आयोडाइज्ड सॉल्ट आपको लेना है। बहुत लोग सेंधा नमक, ये नमक, वो नमक, पता नहीं क्या क्या लेते हैं, तो आपको वही नमक का यूज करना है जो कि आपके खाने के अंदर आयोडीन की कमी को पूरा करने में आपकी मदद करेगा, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ सप्लीमेंट हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमें जरूर लेते रहने चाहिए, राइट। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैम कौन से ऐसे सप्लीमेंट हैं जो कि हमें जरूर लेने चाहिए, जो कि आपको लगता है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, फ्लैक्स ऑयल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स मैं लिख देती हूँ जो कि आपको जरूर लेने हैं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपको फ्लैक्स ऑयल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोकोनट ऑयल हैज टू बी कंज्यूम्ड। आप अपने डाइट से पूरा कर सकते हैं, आप अपने खाने में कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं। साउथ इंडियंस जिस तरीके से यूज करते हैं, आप जो है अगर आपको उसका स्मेल पसंद नहीं है, आप यूज नहीं कर सकते अपने डाइट में कोकोनट ऑयल खाने में, तो आप कोकोनट ऑयल कैप्सूल्स का भी यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल सप्लीमेंट का भी यूज कर सकते हैं, राइट। फ्लैक्स ऑयल, कोकोनट ऑयल दूसरा जो प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्बायोटिक्स बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है जो कि थायराइड के अंदर वो सारा पोषण देने में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से थायराइड को कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इज, जो हमें जरूर लेना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, दैट इज गैनोडर्मा, राइट। गैनोडर्मा क्या करेगा? गैनोडर्मा हमारे सेल्स में से गंदगी को निकालेगा, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करेगा, जिससे हमारी बॉडी को अच्छे रिजल्ट्स मिलने में मदद मिलती है, हमारी बॉडी को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, हमारी बॉडी एक्टिव होती है, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट विच वी कैन टेक इज सीबकथॉर्न, राइट। ये 5 जो प्रोडक्ट हैं, ये 4 जो प्रोडक्ट हैं, ये हमें जरूर लेने चाहिए। ये सारे ही प्रोडक्ट हमारे थायराइड को अच्छा करने, बैलेंस करने, वो पोषण देने में, वो सिम्टम्स को कम करने में हमारी मदद करते हैं जो थायराइड में स्पेशली आते हैं। दूसरी जो सप्लीमेंट हमें कभी कभार जरूर लेने चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट। कैल्शियम आपकी बॉडी में कम होने लगा है, कैल्शियम अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो आपको हड्डियों की दिक्कत आएगी, तो कैल्शियम आप जो है समय समय पर लेते रहिए, टाइम टू टाइम कैल्शियम का यूज करते रहिए। देन यू हैव कोलेजन, कोलेजन भी हमें समय समय पर टाइम टू टाइम इसका यूजेज करना चाहिए, राइट। तो आई गेस मैं काफी हद तक वो चीजें बता पाई हूँ जो कि आपके थायराइड को, स्पेशली जो है हाइपोथायराइड के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करती है।
आशा करती हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ। कुछ चीजें जिनका अभी हमें ध्यान रखना है, जो कि थायराइड के अंदर, जब आप सुबह सुबह उठकर थायराइड की गोली खाते हैं, थायरोक्सिन खाते हैं या थायरोनॉम खाते हैं, तो उसके बाद आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। ना कैल्शियम खाना है, ना फ्लेक्स खाना है, ना नोनी खाना है, ना गैनोडर्मा खाना है, ना रोटी खानी है, ना चावल खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। सुबह सुबह उठते ही जैसे आपने थायराइड की गोली खाई, उसके उसके 30 मिनट के बाद ही आपको कुछ भी खाना है। उसके अब आफ्टर 30 मिनट्स ही हमें कोई भी सप्लीमेंटेशन खाना, बनाना, केला, चावल, कुछ भी हमें 30 मिनट के बाद ही खाना चाहिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। जिन लोगों को थायराइड में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है, थायराइड में बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत ज्यादा उनको ऐसा लगता है कि हमारा कॉन्स्टिपेशन जो है वो ठीक नहीं हो रहा, तो रात को जो है आप अपनी रोटी के अंदर, जो रोटी आप खाते हैं, आप उसमें थोड़ा सा तिल मिला सकते हैं। तिल आप समझते हैं, व्हाइट तिल, राइट? व्हाइट तिल जो है वो फाइबर से भरपूर होता है, फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें होता है, कैल्शियम उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिलता है। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा, एक चौथाई चम्मच अगर मैं उसको बोलूं, तो आपको तिल को जो है आप सौटे करके रख लीजिए तवे के ऊपर। और तिल जो है आप जब भी आप रोटी बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, तो उसी आटे के अंदर आप वो तिल डाल दीजिए। आपके सुबह सुबह आपके कॉन्स्टिपेशन को भी खत्म करने में आपकी मदद करेगा, साथ ही साथ आपको कैल्शियम देगा और बहुत सारा पोषण देगा, जो कि आपके थायराइड के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर इस मीटिंग को हम लोग अभी जो है वो रोकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक हाइपोथायराइड है, उसको हमने कवर करने की कोशिश की है। अभी जो है मैं कुछ क्वेरीज लूंगी, आप लोगों के सवाल लूंगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, हाइपरथायरॉयडिज्म, सर हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म के ऊपर एक और अलग से मीटिंग करेंगे। आज के टॉपिक के अंदर हम हाइपरथायरॉयडिज्म को नहीं छेड़ रहे हैं, क्योंकि एक साथ बहुत ज्यादा चीजों को समझना इज नॉट पॉसिबल। लेकिन एक चीज जो आप, अगर आप मीटिंग छोड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में दोनों की केसेस के अंदर आपके जो सप्लीमेंट है वो सेम चलते हैं, राइट? उनकी कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन सप्लीमेंट जो है वो सेम चलते हैं। मैम चावल खाना है या चावल का पानी भी पीना है? सिर्फ चावल खाना है सर, राइट? ओके, परफेक्ट। और एनी मोर सजेशंस, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? थायराइड में वेट लॉस के लिए क्या वेस्लिन के प्रोडक्ट ले सकते हैं? अगर आपको वेट लॉस एक आपकी समस्या है थायराइड के अंदर, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपको कंट्रोल करना है, तो आप वेस्लिन के प्रोडक्ट ले सकते हैं। मैंने सिर्फ उन प्रोडक्ट को डिस्कस किया है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो आपका वेट गेन होगा ही नहीं, और आपको वेट लॉस करने में बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आप वेस्लिन के प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, राइट? सप्लीमेंट कैसे लेने हैं सर? सभी सप्लीमेंट के ऊपर लिखा हुआ है। फ्लेक्स ऑयल खाना खाने के बाद, कोकोनट ऑयल 1 से 2 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, कॉम्बोटिक्स, कोई भी सप्लीमेंट जो आप ले वो कम से कम 2 से 3 कैप्सूल्स ले, राइट? और सारे कैप्सूल जो है वो आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं, राइट? कोलेजन कैसे लेना है? 1 सैशे खाना खाने के बाद आपको पानी में मिक्स करना है और लेना है, राइट?